What is definition of isotope? Same atomic number, but different atomic mass. Same atomic number but different atomic mass. सिंबल था मेरा न्यू का. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास 2, एटॉमिक नंबर 1 मास 3. That is known as protium. That is known as deuterium. That is known as tritium. That is known as tritium. This one is radioactive. This one is non-radioactive. Hydrogen, protium, deuterium, tritium. These are isotopes of hydrogen. O16, O18. These are isotopes of oxygen. Cl35, Cl37. These are isotopes of chlorine. Uranium-235, uranium-236, uranium-238 is a isotopes of uranium. Okay ना. कार्बन 12-13 चल. कार्बन 12, कार्बन 12, 13, 14. C12, C13, C14. यूरेनियम, क्लोरीन, ट्रिटियम. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट मास विल बी डिफरेंट. ओके, चलो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स. O16 और O18. both are isotopes to each other. Now atomic number आप यहां फिलअप करोगे. प्रोटॉन आप यहां फिलअप करोगे. इलेक्ट्रॉन आप यहां फिलअप करोगे. न्यूट्रॉन आप यहां फिलअप करोगे. न्यूक्लियॉन्स. एटॉमिक मास क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. यहां क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज.
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो यहां पर आप फिलअप करोगे। फिलअप कर लिए। एटॉमिक नंबर 8। अब यहां लिखते भी जाना है कि सेम है कि डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर विल बी सेम। ठीक है। प्रोटॉन कितना होगा 8। सेम। इलेक्ट्रॉन 8 क्या होगा सेम। न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा सेम। एटॉमिक मास 16 एंड 18। न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 सेम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 18 डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2p 8 4 1s2 2s2 2p4 इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स उतना ही है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी chemical property will depend upon electronic configuration. Here electronic configuration will be same. That means physical properties will be same. Physical property will depend upon atomic mass. Atomic mass. And here atomic mass is different. So physical property will also different. Radioactive property that means emission of alpha beta gamma. Emission of alpha beta gamma is known as radioactive property and that will be different. Here oxygen is not radioactive properties but uranium 92 234 235 or 236 here these are radioactive. That means this one will be eliminate alpha beta, this one will be, if this one will be emitted alpha, this one will be emitted beta gamma. That means emission of radiation will be different. Emission of radiation will be different. That's why we called they have different property. So in a isotopes atomic number will be same, proton will be same, electron will be same, but different in mass. Neutron different in atomic mass
different in nucleons, same in configuration, same in physical properties, different in chemical properties, and different in radioactive properties. Okay, so this one is complete definition of isotopes, what will be same and what will be different in isotopes. So in isotopes, main different point is that neutrons, due to that mass will be different. Here in isotopes, neutron will be different, that's why mass will be different. Neutron will be different, neutron will be different, that's why mass will be different. Neutron will be different, that's why mass will be different. Radioactive properties means emission of alpha, beta, gamma. These are different properties. If it release alpha, then it release beta, then it release gamma. Then it has different radioactive properties. Physical properties will depend upon atomic mass, and here atomic mass will be different. That's why physical properties, that means melting point, boiling point, will be also different. And chemical properties will be depend upon electronic configuration, and here electron will be same, that's why electronic configuration will be same. That's why physical property, chemical properties will be same. In a isotopes, chemical properties will be same, but physical properties will be different. This one is important point. Okay, have any doubt? हम यहां पर क्या निकालेंगे? एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. ठीक है, हमारा कैलकुलेशन होगा एवरेज एटॉमिक मास. हाउ टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे? तो जिस आइसोटॉप्स का परसेंटेज है उसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आइसोटॉप्स इनटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100, यही हमारा न्यूमेरिकल होगा. तो ये एवरेज मास आ गया क्या? 35.5. ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन करने का न्यूमेरिकल्स कैसे होगा? दिस वन इज एवरेज मास. हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मास. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना कितना परसेंट है. दोनों परसेंटेज का सम क्या होगा? 35.5 सॉरी 100 होगा. ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि एटॉमिक नंबर 35.5 इंटीजर में क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, और जब हम एवरेज मास निकाल रहे हैं तो 35.5 नहीं आ रहा है, मतलब 35.5 आ रहा है. तो हम ये बोलेंगे कि उस एलिमेंट का जब एवरेज मास निकाल देंगे तो हो सकता है फ्रैक्शन में आए या हो सकता है इंटीजर में आए. ठीक है, तो हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं. एवरेज मास कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मास, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स. इसीलिए जब हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है फ्रैक्शन में आए या नहीं भी आए, दोनों पॉसिबिलिटी है उसका. ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है कितना कितना परसेंट आया और उसका कितना आया. तो इंटीजर में होने का रीजन ये है. ठीक है, एक दूसरा न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं. राइट डाउन सेकेंड न्यूमेरिकल्स. Neon has two isotopes. Neon has two isotopes. Neon has two isotopes, 20 and 22, and average atomic mass. Average atomic mass equal to 20.2. 20.2. Ratio of relative abundance of isotopes. Ratio of relative abundance. Ratio of relative abundance of isotopes.
इस दोनों का कितना कितना परसेंट ये एग्जिस्ट करेगा उसका रेशियो बताना है। पहला ऑप्शन है 1:9, दूसरा ऑप्शन है 9:1, तीसरा ऑप्शन है 7:3 और चौथा ऑप्शन है 4:1। चलो जल्दी से बताओ। चलो साक्षी राजवी का आंसर भी आया और वो करेक्ट भी है। तो सबका आगे आंसर, इनका परसेंटेज कितना है? तो मान लेते हैं नियॉन का क्या है, नियॉन 20 का x% है, तो नियॉन 22 का कितना होगा 100 माइनस x। एवरेज मास कितना दिया हुआ है 20.2, तो एवरेज मास इक्वल टू मास इंटू परसेंटेज P1 प्लस मास इंटू परसेंटेज P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 इक्वल टू 100। एवरेज मास कितना गिवन है 20.2, मास कितना है इसका 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स प्लस मास कितना है 22 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2020 बहुत ही खराब है ये, है ना, है कि नहीं है? 2020 बहुत ही खराब है। ये 200 माइनस 20x, ये इधर आएगा 2020 माइनस 2200 इक्वल टू 20 माइनस 22x, दिस वन इज 180 और इक्वल टू माइनस 2x, दिस वन इज माइनस 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 कैंसिल, x इक्वल टू 90, that means x equal to 90% and this one is 100 minus 90 equal to 10%. Now question is that relative ratio of abundance, तो 90 अपॉन 90, नहीं नाम नहीं लेने का, 9:1। समझ में आया क्या? तो आंसर इज 9:4। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। Have you any doubt? Okay. Now next question. नियॉन का एक्चुअल मास कितना होता है इतना, लेकिन हम क्या बोलते हैं 20.2 को मिनिमाइज कर देते हैं, बराबर है क्या? नियॉन का 0.2 मिनिमाइज कर देते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरॉन हैज 2 isotopes B10 and B11. बोरॉन हैज 2 isotopes B10 and B11. Boron has 2 isotopes B10 and B11 and their abundance percentage is 20% and 80%, and their percentage abundance is 20% and 80%. What will be average mass of boron? What will be average mass of boron? ऑप्शन है 10,
11, 10.5, 10.8। चलो एक आंसर आ गया है राजवीर शाह का, बाकी बताओ। बाकी का आ गया, साक्षी का भी आ गया, करेक्ट है। आंसर इज डी। मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोले हो, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। एवरेज मास इक्वल टू मास इंटू परसेंटेज, 10 into 20 plus mass into percentage, 11 into 80 divided by 100 equal to 200 plus 80, 80, now 10, 80, now 100, now average mass of boron is 10.8। तो ये डेसिमल में आया, फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनका परसेंटेज एबंडेंस क्या है, अलग अलग है। दैट्स वाई एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है बोरॉन का, 10.8, लेकिन हम बोल देते हैं कितना, 11 बोल देते हैं, बोलते हैं ना 11, अप्रॉक्स में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होगा 10.8। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट? चलो आगे लिखो। द मास ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ 3 isotopes of an element, the mass of 3 isotopes and element are 10, 12 and 14, are 10, 12 and 14 respectively. Okay, now percentage abundance is percentage abundance is 80%, 15% and 5% respectively. Find their average mass. Okay, option is 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. राजवीर शाह, आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? 80, 15, 5, 10 into 80 plus 12 into 15 plus 12, 10, 12, 14, 5 डिवाइड बाई 100, 800 और 180 और ये 70 डिवाइड बाई, ओह हो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 10 पॉइंट आगे जाएगा। कितना हो गया? 7, 7, 14, 15, 5, 1 और 8, 1, 9, 1, 10, 10.5 आएगा। हैव यू एनी डाउट?
ओके, तो कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आइसोटॉप्स हमने बता दिया, आइसोबार कल हम कंटिन्यू करेंगे, देन हम अल्फा बीटा गामा के बारे में चेक करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।